Hello, my dear nursing aspirant. I am Julian P. Tirki. Welcome you all in APT online nursing classes. In this session video, you will be getting a detailed information about the National Health Mission Rajasthan vacancy which has come in a huge amount, that is 3,531 posts for CHO. Stay in this video to get a complete information about the CHO upcoming exams. Thank you. Yes, my nursing aspirants, a huge amount of vacancy has come by National Health Mission Rajasthan government. The notification details are as follows. Organization name is Rajasthan Subordinate Ministerial Services Selection Board, RSM SSB. Recruitment exam name is RSM SSB Community Health Officer Recruitment Exam 2022. The post notified is for Community Health Officer and the recruitment type is contractual basis. Yes, my friends, contractual basis vacancy is for Community Health Officers. Yes, my nursing aspirant. Now moving on to the salary and the pay scale for community health officers. The candidate selected as a community health officer by RSM SSB will be getting a fixed monthly salary of rupees 25,000 per month. The Rajasthan Subordinate Ministerial Services Selection Board has notified total 3,531 vacancies for community health officer for the recruitment year 2022. Yes, for 2022, 3,531 vacancies have come for community health officer Rajasthan. Out of this, 3,531 CHOs vacancies notified by RSM SSB, 3071 vacancies are for non-TSP areas and 460 vacancies are for TSP areas. Yes, my friend, 3,531 में जो वैकेंसीज होंगे CHOs के लिए, उसमें 3,071 वैकेंसीज जो होंगे वो नॉन TSP एरिया के लिए होगा और 460 वैकेंसी जो है वो TSP एरियाज के लिए होगी. Yes, my nursing aspirants, moving on to the educational qualification and eligibility criteria for RSM SSB CHO exam is as follows. BSc in community health or nursing, that is GNM or BSc, or Ayurveda practitioner, that is BAMS from recognized university. Candidate should have done it, and the candidate's university should be registered in the respective Rajasthan Nursing Council, Board of Indian Medicine Rajasthan, and all the candidates have to appear for a screening exam. Yes, my friends, जितने भी students होंगे सबों को screening exam में appear करना जरूरी होगा और जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग एग्जाम में अपीयर करेंगे उन्हीं में से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. Students having the certificates in community health, that is CCH, and BSc in community health or BSc nursing with integrated curriculum or post basic BSc nursing with integrated curriculum will be posted on contractual post of CHO in sub centers or HWC. Yes, my friends, again I will repeat, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी CCH कोर्स किया हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ में BSc किया हुआ है या BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ किया है या पोस्ट बेसिक इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ किया है, उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट CHOs का मिलेगा और वो सब सेंटर्स में पोस्टेड होंगे. सीधे उनकी नियुक्ति होगी सब सेंटर्स में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में. दूसरी बात, जिन्होंने who do not have a certificate in community health, BSc in community health, BSc nursing with integrated curriculum or post basic BSc nursing with integrated curriculum have to pass the 6-month bridge course successfully. Yes, my friend, जिनके पास ये डिग्री इंटीग्रेटेड करिकुलम का नहीं है, उनको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम करना आवश्यक होगा. तभी जाकर के आपको ब्रिज कोर्स प्रोग्राम जैसे आप करेंगे उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग होगी. बट जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनकी डायरेक्ट नियुक्ति हो जाएगी. अगर जो स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स के लिए जा रहे हैं वो 6 मंथ के प्रोग्राम में
उन कैंडिडेट्स को पहली अटेम्प्ट में ब्रिज कोर्स क्वालिफाई करनी होगी। अगर वो क्वालिफाई करते हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी, और अगर जो कैंडिडेट असफल हो जाते हैं पहले प्रयास में उन्हें एक और चांस दिया जाएगा एनएचएम राजस्थान के द्वारा। और ऐसे कैंडिडेट्स को जब वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, द फीस एक्सपेंडिचर फॉर ब्रिज कोर्स शैल बी बोर्न बाय कैंडिडेट हिमसेल्फ। उनका जो भी फीस होगा ब्रिज कोर्स का वो उनको खुद देना होगा, ये ऐसे सरकार का कहना है। दूसरा पॉइंट कहता है इफ एनी कैंडिडेट इफ ही इज नॉट क्वालिफाइंग इवन आफ्टर अवेलिंग सेकेंड अपॉर्चुनिटी सच कैंडिडेट शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कंट्रैक्चुअल पोस्ट। 2 बार ब्रिज कोर्स करने के बाद आपको टाइम मिलेगा एग्जाम क्वालिफाई करने का। अगर आप पहले प्रयास में सफल हो जाते हैं तो आपकी सीधे नियुक्ति हो जाएगी, परंतु अगर आप असफल होते हैं दोनों अटेम्प्ट में तो आपका जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी के बाद जो टाइम कंसिडर किया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट का उसको हटा दिया जाएगा। आप फिर उस पोस्ट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते हैं। Moving on to the age limit for RSM SSB Community Health Officer requirement. Yes, my friends, the age group of candidates should be between 21 to 40 years as on 01/01/2023 for RSM SSB CHO Recruitment Exam 2022. आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने एज को निकाल करके देख लें, आपका एज 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप अब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन आपको जैसे कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज पर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की रूल है उसी तरह से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस पोस्ट के लिए भी। अब बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन फीस फॉर RSM SSB CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। यस माय डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स, एप्लीकेशन फी जो होगी RSM SSB CHO एग्जाम के लिए फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स एंड OBC जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो मात्र 450 रुपए होगी, और जो कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC एंड स्टेट BC में उनके लिए 350 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। जो कैंडिडेट्स SC ST कैंडिडेट्स है राजस्थान गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अनुसार उन कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 250 रुपए है। Yes, my dear nursing aspirants, moving on to the important dates for RSM SSB Community Health Officer Requirement 2022. Date of notification will be coming on 01/11/2022. Starting date of online application will be 8/11/2022 and the last date for online application will be 7/12/2022. Yes, my friends, last date online application का 7/12/2022 रखा गया है। My dear nursing aspirants, you are getting a complete syllabus of RSM SSB CHO in this video clip by APT Online Nursing Classes. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो आप जरूर करें ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप सही से प्रिपरेशन कर पाएं। सिलेबस ऑफ RSM SSB CHO एग्जाम के लिए कुछ इस प्रकार से है। जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन स्ट्रक्चर रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ से क्वेश्चंस रहेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैटरनल हेल्थ एंड कम्युनिकेबल डिजीज से भी क्वेश्चन रहेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स में। जनरल मेडिसिन से एंड मेडिकल इमरजेंसी से भी क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी में सिर्फ इसेंशियल ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी का क्वेश्चंस रहेगा एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे आपके बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से, वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग से, हेल्थ मैनेजमेंट से एंड रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग से। Yes, my dear nursing aspirant, I hope so that you all have got a detailed information about upcoming exam RSM SSB CHO 2022. If you have not subscribed our channel, do subscribe APT Online Nursing Classes for more upcoming further videos. Thank you.